on this chapter, that is the third chapter. And in third chapter we have gone through the different types of protocol that was called as multiple access protocol. Okay, and these multiple access protocols have been categorized into three different categories, as we have discussed earlier so many times. The first one was random access protocol, the second one was controlled access protocol, and the third one was channelization protocol. Okay, and out of these three categories, if you will see, then only these two or three protocols are there in your syllabus. Okay, the remaining words are not in your syllabus. Okay, so the very first one, that is random access protocol, as the name itself suggests that I'm very random. Okay, whenever you want to access the medium, you can access the you can access the medium. Okay, you have no restriction on that. Okay, so all those kind of protocols comes in into the random access protocol. Then we have second one, that is controlled access protocol, that we are not going to discuss so far, but still in controlled access protocol we have some techniques, we have some strategies, and those strategies are the reservation, polling, and token passing. Okay, so these are the three different protocols, we can say. We can call it as a strategies, we can call it as a technique, we can call it as a method. Okay, so you can call it anything, but it's a process, or we can say it's a strategy from which you can access the medium. Not you, users can access the medium without any hurdle. Okay, and let me revise you and let me remind you that these multiple access protocols are for the situation where we are having multiple users and they all are trying to access the medium. Okay, so we have one medium. Okay, and multiple users are trying to share the data or transmit the data from the same medium. Okay, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, you have one door in your classroom and all the peoples are trying to, okay, सब जाएंगे वहीं से. ओके, दैट नो डाउट कि सब के सब वहीं से जाएंगे, बट एट अ टाइम आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डोर लेके सब लोग बाहर निकल जाएंगे. So just I gave you one example that if you have to control it, the access of that particular door, you have to control it. Otherwise, what will happen? That will be collapsed. Okay. So for that purpose, we have only one medium. We have one only. We have a single medium. We have a single link, and from that link, multiple users are trying to share the data. Multiple users are trying to transmit the data. Okay, when multiple users will try to share or transmit the data from the same link, from the same medium at the same time, then what will happen? Obviously, दो पैकेट्स के बीच में, दो फ्रेम्स के बीच में क्या हो जाएगा? कोलिशन होगा, and we have to avoid those collision. For that we have already seen the aloha. Okay, हम लोगों ने aloha protocol देखा, example देखा. Then we came to the slotted aloha. In slotted aloha we divide the time into number of time slots, and we have forced each and every station, to send the data or to transmit the data, to transmit the frame at the beginning of the time slot only. एक बार अगर आपने टाइम स्लॉट बिगिनिंग का टाइम स्लॉट अगर कभी मिस किया, तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम स्लॉट का वेट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, आई गिव यू दैट एग्जांपल आल्सो कि इफ एनी यूजर वांट्स टू ट्रांसमिट द डेटा, देन अगर कभी यहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट है तो वो चलो स्टार्ट कर दे ट्रांसमिशन. ओके, और अगर ये पॉइंट पे उसको अगर याद आया या उसका रिक्वायरमेंट आया, ठीक है, सो वी कैन नॉट अलाउ अ यूजर to transmit the data at this particular moment of time. Okay, then what it has to do, it has to wait for that much time. Okay, ये पूरा टाइम इसको वेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वो अपना सेंड कर सकते हैं. I know that was a kind of improvement which was there in the slotted aloha after pure aloha. Okay, उसके बाद में अगर आगे चलते हैं तो फिर हम लोगों ने कुछ persistent method देखे थे. So these persistent method are used when if the station is if the station wants to transmit the data and the station is busy. Case number one, station is busy. Case number two, station is idle. Okay, स्टेशन क्या करे अगर कभी मीडियम बिजी है तो क्या करना पड़ेगा, उसको वेट करना पड़ेगा ना उसको. तो वही वेट कैसे करना है उसको यहाँ पर इसमें बताया. अच्छा, अगर कभी मीडियम अगर अगर कभी फ्री है तो क्या करना है, उसको अपना डेटा ट्रांसमिट करना है, वही चीज यहाँ पे बताया. ओके,
So in order to answer these two questions, we have these three persistent method, and from these persistent method, we will be able to easily understand that what a user has to do if the medium is idle and if the medium is free. Okay. So for understanding and for answering these questions, we have understood these things. Okay, that is the persistent method. And how many persistent method? मैं पूरा revise ही कर रहा हूँ अभी तक. And how many persistent method we have seen? One persistent method, non-persistent method, and the third one was p-persistent method. Okay, so one persistent continuously sense करेगा, जहां मिलेगा मौका ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा. नॉन परसिस्टेंट कंटिन्यूसली नहीं करेगा, सेंस करेगा, विल वेट फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, देन सेंस करेगा, फिर वेट फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, और जहां फिर फ्री मिलेगा वो उसको ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा. एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट कम्स अंडर द पी परसिस्टेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी. ओके, उसके बाद में हम लोगों ने सीएसएमए पे आना था. ठीक है, हम यहाँ से हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हम लोग आज सीएसएमए पढ़ेंगे. आज हमारा कंप्लीट होगा, इसके लिए मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ. वी विल अंडरस्टैंड दिस सीएसएमए एंड दिस CSMA CD. ओके, तो इतना हम लोग पढ़ने वाले हैं, और CSMA CA हम लोग नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, बिकॉज वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है. तो नाउ कमिंग टू द CSMA फर्स्ट. ओके, आई वांट एवरीवन टू concentrate over here. क्वेश्चन बैंक चेक करते हैं. इफ ऑल आर गिविंग एंड इफ HOD परमिट, देन वी विल आल्सो इशू. ओके, so back to the topic, that is CSMA first. Okay, that what is CSMA? Carrier sense multiple access. Okay, carrier sense multiple access. This is the protocol which comes under the random access protocol. This is the second protocol of random access protocol, comes under the multiple access protocol category. Okay, so first of all, this particular protocol has been introduced in order to minimize the collision. Okay, कोलिजन कम करने के लिए हम लोग ला रहे हैं. प्योर के बाद में स्लॉटेड लाए, स्लॉटेड के बाद में CSMA लाए. Why all we are introducing all these protocols? What is the reason behind all these protocol? Because we have to minimize the chance of collision. हमको क्या करना है? कोलिजन कम से कम करना है. पहले में देखा था 25% खाली डेटा मिला था, 75% लॉस हुआ था. फिर स्लॉटेड अलो हमें 50% डेटा मिला, 50% लॉस हुआ. And then we came up with the CSMA. Okay, CSMA देखते हैं क्या इसकी strategy है. So basically, in order to increase the performance, the CSMA method was developed. Okay, so we performance increase होगा. Obviously, जब collision कम होगा तो इसका performance increase होगा, efficiency increase होगी. सब उसके directly proportional है. The chance of collision can be reduced if the station senses the medium before trying to use it. Okay, you need to understand it very very clearly. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस खाली छोटा सा इंट्रोडक्शन है. ठीक है, तो CSMA क्या है? बेसिकली ये रहा आपका मीडियम. ओके, ये रहा आपका मीडियम. ठीक है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, थोड़ा समझ के. If any station has a requirement, if any station has a requirement to send the data or to transmit the data to any other station, then what it has to do according to the CSMA. CSMA क्या बोलता है हमारा? स्टेशन क्या करे? पहले सेंस करे मीडियम को बिफोर ट्राइंग टू यूज इट. यूज करने से पहले क्या करे? मीडियम को सेंस कर ले. तो कोई स्टेशन है हमारा. ठीक है, अब स्टेशन को क्या करना है? इसको मीडियम के थ्रू हमारा डेटा सेंड करना है. ठीक है, तो फ्रेम यहाँ से, मतलब फ्रेम मेरे यहाँ से यहाँ पे जाने वाले हैं. ठीक है, तो स्टेशन को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेशन हैज़ टू सेंस द मीडियम. ठीक है, ऐसा कान रख के सुनेगा, कान रख के सेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनकी अलग टेक्निक है. ठीक है, तो स्टेशन हैज टू सेंस द मीडियम फर्स्ट. ओके, if there is any other station who is also using this medium right now, then your station has to wait. So for example, समझ लो एक और स्टेशन है, एक और स्टेशन है. ओके, सो वी हैव टू मोर स्टेशन. ओके, एंड हो सकता है कि उन लोग भी अच्छा मैं स्टेशन यहाँ पे बना दिया हूँ, स्टेशन में यहाँ पे बनाता हूँ. ठीक है, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन, ठीक है, 4 स्टेशन हो गए. अब ये चारों स्टेशन के लिए एक ही मीडियम है. तो ये क्या करेगा? अगर फॉर एग्जांपल इस नंबर 1 को अगर कुछ सेंड करना है, देन व्हाट इट हैज़ टू डू? इट हैज़ टू सेंस द मीडियम फर्स्ट. ओके,
after sensing the medium, if it found that the medium is free, मतलब मीडियम को कोई और यूज नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, क्या करेंगे बोलो, स्टेशन नंबर 1 विल स्टार्ट इट्स ट्रांसमिशन, ठीक है। तो स्टेशन नंबर 1 ने पहले सेंस किया, तो पता चला कि भाई कोई नहीं है अंदर, तो इसने अपना अपने 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 फ्रेम इसके अंदर पुट कर दिया, ठीक है। अब इसके फ्रेम जा रहे हैं। अब जैसे ही इसने सेंस किया और मीडिया उसने इसने सेंड किया, अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट किया, इमीडिएटली आफ्टर दैट स्टेशन नंबर 2 हैज अ रिक्वायरमेंट नाउ, ठीक है। स्टेशन नंबर 2 गॉट द रिक्वायरमेंट टू ट्रांसमिट द डेटा, तो इट विल आल्सो सेंस द मीडियम। ये भी क्या करेगा, मीडियम को सेंस करेगा। जब मीडियम को सेंस करेगा, देन क्या पता चलेगा उसको, क्योंकि इसका ऑलरेडी इसका इसके इसके फ्रेम्स ऑलरेडी ट्रांसमिट हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो मीडियम आपका फ्री है या बिजी है, आपका मीडियम फ्री है या बिजी है, योर मीडियम इज आइडल और बिजी, अरे बोलो, बिजी है, ओके। तो अगर कभी ये ऑलरेडी यूज कर रहा है तो आपका मीडियम क्या है, ऑलरेडी बिजी है। जब बिजी है तो इसको हम लोग अलाउ करेंगे, स्टेशन नंबर 2 को हम लोग अलाउ करेंगे, नहीं अलाउ करेंगे। नो, बहुत बहुत एकदम कॉमन सेंस की बात है, और ये हम लोग को सबको समझ में आएगी। बस यही चीज आपके सीएससी में है, ठीक है, और कुछ नई चीज नहीं है इसके अंदर। ओके, स्टेशन नंबर 2 क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है, इसने सेंस किया मीडियम को, पता चला कि स्टेशन नंबर 1 इज ऑलरेडी ट्रांसमिटिंग द फ्रेम्स, ओके। सो स्टेशन नंबर 2 हैज टू, क्या करना पड़ेगा उसको, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। स्टेशन नंबर 2 हैज टू वेट, कब तक वेट करेगा भाई, कब तक वेट करेगा, यही चीज बताने के लिए मैंने आपको पहला वाला टॉपिक पढ़ाया हूँ, दैट इज परसिस्टेंट मेथड, ओके। अब स्टेशन नंबर 2 कौन सा परसिस्टेंट मेथड यूज करेगा, उस पर डिपेंड है कि उसका आगे का स्टेप क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो 1 परसिस्टेंट मेथड यूज कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेशन नंबर 2 इज यूजिंग दी 1 persistent method, and according to the 1 persistent method, your station number 2 will continuously sense the medium, will continuously torture the medium, will continuously sense the medium, okay। तो सेंस करेगा मीडियम को, और जहां पे इसका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा, तो जैसे ही इसका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया, तो वैसे ही ये स्टेशन नंबर 1 क्या कर लेगा, अपना वाइंड अप कर लेगा, ठीक है। व्हेन स्टेशन नंबर 1 विल वाइंड अप इट्स ट्रांसमिशन, देन जैसे ही आपका मीडियम फ्री होगा, जैसे ही आपका मीडियम आइडल हो जाएगा, स्टेशन नंबर 2 जो कंटिन्यूसली सेंस कर रहा है मीडियम को, उसको क्या मिलेगा, अब तो मीडियम क्या हो गया है, आइडल हो गया है, फ्री हो गया है। नाउ स्टेशन नंबर 2 विल इट्स स्टार्ट इट्स ट्रांसमिशन। ये क्लियर है, ठीक है। तो उसने क्या किया, परसिस्टेंट मेथड, इसमें इसीलिए बोला हूँ कि while transmitting the frames we got many questions, okay, while transmitting the frames we got many question, when the if the station is busy, if the station is idle, at that time we got many questions in our mind, so those questions will be answered by our persistent method, okay। ओके, ये तो आपका एक केस हो गया। अब आप ऐसे बहुत सारे केसेस सोच सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक केस ये भी आपका हो सकता है। अब आपका अगर फॉर एग्जांपल स्टेशन नंबर 2 इज यूजिंग दी नॉन परसिस्टेंट मेथड, ओके, स्टेशन नंबर 2 is using non-persistent method, and according to the non-persistent method your station will sense the medium first, okay। If it found idle, then it will start its transmission. If it found it busy, then it has to wait for some amount of time, okay। तो चलो ये हमारा नॉन परसिस्टेंट मेथड यूज कर रहा था, ठीक है। तो उसने एट टाइम टी वन उसने सेंस किया, ठीक है। सेंस किया तो उसको मीडियम क्या लगा, मीडियम उसको बिजी लगा, ठीक है, मीडियम उसको बिजी लगा। तो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द नॉन परसिस्टेंट मेथड इट विल वेट फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, फिर वापस से सेंस करेगा एट टाइम T2। अगर आपके स्टेशन नंबर 1 का इस टाइम के बीच में कहीं हो गया, तो उसका जो भी ट्रांसमिशन था वो कंप्लीट हो गया, तो एट जब टाइम T2 के टाइम पे जब वो अपना सेंस करेगा स्टेशन नंबर 2, तो क्या होगा, उसको मीडियम क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा, और जैसे मीडियम फ्री मिलेगा इट विल स्टार्ट इट्स ट्रांसमिशन। समझ में आ रही है आप लोग को, समझ में आ रहा है आप लोग को। सेकंड, मैं आपको सेकंड केस क्या बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है।
नहीं आया समझ में आप लोग को? अरे बाबा रिस्पॉन्ड एवरीवन, कितने लोग हैं यहाँ पे? समझा सर। समझा? I was just talking about the second case. I was just talking about the second case. In that particular second case, मैं क्या करूँगा, नॉन परसिस्टेंट के अंदर जो हमारा यहाँ पर है, नॉन परसिस्टेंट के अंदर यहाँ पर है टाइम टेबल मैंने यहाँ पर सेंस किया, तो पता चला कि अभी बिजी है, तो फिर वेट करूँगा इतना टाइम, वापस से सेंस करूँगा। ठीक है, मालूम पड़ा कि चलो हो गया, फ्री हो गया। अगर यहाँ पे फ्री हो गया तो ये क्या करेगा, सेंस के बजाय क्या करेगा, ये ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और अभी भी नहीं हुआ तो अगेन वेट करेगा। ठीक है, तो आपको आपको आप लोग को पता है नॉन परसिस्टेंट में क्या होता है। तो ये चीज़ हमारी हो सकती है सेकंड केस में। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग केस हमको मिल सकते हैं। तो ये हमारा CSA में है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस। इन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस दिस इज द सिंगल प्रिंसिपल। ओके, हमारे पास में एक ही प्रिंसिपल है, और वो ये है कि सेंस बिफोर ट्रांसमिट। ओके, ट्रांसमिशन स्टार्ट करने से पहले सेंस करो। ओके, यानी कि उसको आप, और ऐसे मैंने एग्जांपल में भी लिखा हूँ, लिसन बिफोर टॉक। ओके, बात करने से पहले सुन लो एंड देन यू स्पीक। ओके, so carrier sense multiple access requires that each station first listen to the medium before sending or before transmission of their frequency. Okay, so each and every station has to listen the medium first, and then only it has to start the transmission. ठीक है, अगर फ्री है तो स्टार्ट करो, नहीं है तो वेट करो। दैट इज द सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड CSA। ओके, अच्छा, ऐसा ऐसा केस हो सकता है, जो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट केस, जो कि मैंने एकदम ब्लू कलर में लिखा हूँ, द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन स्टिल एग्जिस्ट। अच्छा चलो, आपने बहुत यहाँ पर केयर कर लिए एंड इम्प्रूवमेंट लेकर आ गए, एंड जो चांसेस ऑफ कोलिजन है वो भी आपने बहुत कम कम कर दिए। दैट इज ऑल ट्रू। ओके, बट स्टिल ऐसा भी तो केस हो सकता है, इफ समवन कैन टेल मी, कि हो सकता है दो स्टेशन ने एक साथ में सेंस किया। ये ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, पहले बोलो मुझे। Is it possible that two stations senses the medium at the same time? And let me know what will happen when two station will sense the medium at the same time. क्या होगा ऐसे समय पर, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। If two station senses the medium, collision अभी कहाँ से होगा? collision तो खैर बाद में होगा ना, पहले तो मुझे स्टार्टिंग का फेज बताओ। मीडियम है, इस मीडियम के अंदर, ये आपका मीडियम है, और इस मीडियम में दो लोगों ने, दो स्टेशन ने एक साथ में सेंस की। ओके, एक साथ में सेंस की, तो अच्छा, पहले वाले का जो आएगा उसको मीडियम क्या लगेगा, मीडियम फ्री है, बिकॉज अभी तो कोई ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसने इसने सेंस किया, इसने सेंस किया, दोनों ने सेंस किया, दोनों को मीडियम क्या लगा, फ्री दिखा, बिकॉज अभी कोई ट्रांसमिशन चालू नहीं है। दोनों ने जो सेंस किए मीडियम, तो दोनों को लगा कि मीडियम क्या है, फ्री है, दोनों को लगा कि मीडियम आइडल है। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे स्टार्ट में, फिर स्टेशन नंबर 1 2, हाँ, दोनों क्या करेंगे, दोनों स्टार्ट में अपना ट्रांसमिशन चालू करेंगे। कंजेशन तो खैर चलो आगे की बात है नेमत, कि जब दोनों के पैकेट जाएंगे और जब कोलिजन होगा, और कुछ पैकेट जब अटक जाएंगे, आड़े टेढ़े ऐसे लग जाएंगे, ऐसे होता है ना, ट्रैफिक हो जाती है, तब जाकर कंजेशन होगा। लेकिन अभी पहले के स्टार्टिंग के स्टेज में क्या होगा, वो तो व्हाट विल हैपन, टू स्टेशन विल सेंस द मीडियम एट द सेम टाइम, देन व्हाट विल हैपन, then they will start the transmission at the same time, and when they will start the transmission at the same time, then collision will occur and congestion may occur, not necessary but congestion may occur। okay, तो ये हो सकता है। तो उसके बारे में क्या सोचा है आपने? आपने तो बहुत बड़ी बड़ी आप लोग बोल रहे थे कि हाँ सर ये इसमें CSMA के अंदर पहले सेंस कर रहा है, मतलब मैं बोल रहा था, आप लोग सुन रहे थे। तो इट विल सेंस द मीडियम, और पहले सेंस करेंगे तो कोई कोलिजन होगा नहीं, और हम लोग को 100% मतलब एफिशिएंसी मिलेंगी, इम्प्रूवमेंट आएगा। बट ये भी तो केस है आपका। और अगर ऐसा है तो आपके इस कंजेशन को कौन डिटेक्ट करेगा?
आपके इस कंजेशन को कौन बताएगा कि भाई कंजेशन हुआ है? सॉरी, कंजेशन की बात कर रहा हूँ, कोलिजन, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोलिजन राइट नाउ. So if collision occurs, then let me know. Who will tell me how I will come to know? Sorry, how I will come to know about the collision, that the collision has been occurred over here. उसके लिए हमारे पास में एक नेक्स्ट प्रोटोकॉल है जिसका नाम है CSMA CD. ओके, सो डोंट वरी, आप लोग इतना 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 मत सोचो, दिमाग आप लोग का खर्चा हो जाएगा, है ना? Okay, coming to the protocol that is CSMA CD, which is the next protocol, which is the, you know, we can say succeeded बस इसके इसके प्रोसीडिंग्स में है. Okay, coming to the next protocol, that is CSMA CD. We call it as a carrier sense multiple access with collision detection. इसको हम लोग ऐसे रीड करते हैं, ठीक है? तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन. ओके, तो भाई चलो अगर कहीं कोलिजन हुआ तो उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं. तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है. दिस इज द डायग्राम फ्रॉम विच यू विल अंडरस्टैंड, ओके, हाउ द कोलिजन हो रहा है. ओके, और जो मैंने आपको केस बताया ना आपकी, वो वही केस यहाँ पर आपके डिस्कस किया गया है, ठीक है? बस खाली डायग्राम अच्छे से एक बार समझ लो, देन यू कैन राइट डाउन. ये पूरा का पूरा आप लोग खुद से लिख सकते हो और आपको किसी का मतलब आपको मतलब ऐसा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? So first of all, we'll start with CSMA CD, and after completion of the CSMA CD, we will complete the chapter. Okay? तो आज हम लोग का है, कल फिर कल तो हमारा प्रैक्टिकल है, और उसके बाद में फिर आप लोग का एग्ज़ाम है. 6 है ना, 7 तारीख है, 8 और 9 तो आपका एग्ज़ाम है, और 10 से आपका मिड टर्म ब्रेक है. मतलब आप लोग 14 से पहले नहीं मिलने वाला. तो मतलब ये आपका ये अभी कुछ एक हफ्ते के लिए ये आपका लास्ट लेक्चर है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है. ओके, मैंने बराबर इसके लिए इसको ऐसा सेट किया था तो हम लोग ये कंप्लीट यहाँ तक कर लें. सो विल कंप्लीट 3 चैप्टर्स till date. Okay. Okay, coming back to the point, that is CSMA CD. Okay, carrier sense multiple access with collision detection. Okay, and now this particular method does not specify the procedure following a collision, but ये collision हम लोग detect लेकिन बहुत बाद में होता है, लेकिन होता है यहाँ पर detection. Carrier sense multiple access with collision detection augments the algorithm to handle the collision. So it just find the collision and it will let you know that there is a collision. In this method, a station monitors the medium after it send a frame to see if the transmission was successful. मतलब basically in this particular method, when a station will transmit the frame, then it has to monitor the frame, that whatever frame I have sent and I have transmit through this particular medium, उसके ऊपर थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना पड़ता है कि भाई ये सक्सेसफुली जा रहा है कि नहीं. ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही है कि अगर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ ये जो हमारा फ्रेम है, it has been successfully received by the receiver and we have got this acknowledgement. If so, the station is finished. If however there is a collision, the frame is sent again. This is the very common and very we can say a simple procedure about uh, फ्रेम रिसेंट. और क्या, तो भी आपका पैकेट अगर लॉस्ट होता है या कोलिजन होता है तो आपको दोबारा सेंड करना पड़ेगा. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. ओके, अब हम लोग यहाँ पर पढ़े जो हम लोग केस पहले डिस्कस कर रहे थे. इफ टू स्टेशन सेंसेस द मीडियम एट द सेम टाइम, if two station senses the medium, all of you please listen this particular diagram, just understand this diagram clearly. Okay, और आप डायग्राम देख के भी आराम से समझ जाओगे, कोई इसमें डायग्राम के अंदर वो नहीं है. ओके, छोटा सा 2 मिनट का डायग्राम है, और इसको अगर आप लोग समझ गए तो इसको आप लोग एक्सप्लेनेशन खुद से लिख सकते हैं. इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इसके लिए निकाल के स्क्रीनशॉट रखा हूँ सो दैट आपके रेफरेंस के लिए. In this particular diagram you can find there are 4 station. Okay, station A, B, C, D. Okay, तो भाई 4 स्टेशन है, एंड स्टेशन नंबर A and C, station number A and C are trying to sense the medium because they have a requirement to send the data or to send the frame. Okay, तो स्टेशन नंबर A and C, you can see A और C के पास में लाइनिंग्स हैं. ठीक है,
Station number A and C are has a requirement have a requirement to send the media to send the frames or to transmit the frames. Okay, so स्टेशन नंबर ए ने टाइम T1 पे, देखो मैं थोड़ा मार्किंग करके आप लोग को बताता हूँ, बस बहुत सिंपल है, पहले आपको डायग्राम समझना है थोड़ा सा, ठीक है। यू कहते हैं स्टेशन नंबर ए एंड स्टेशन नंबर टी, मतलब जो दो कोलिजन हो रहा है वो इन दोनों स्टेशन के फ्रेम्स में कोलिजन होने वाला है, ठीक है। सो वी हैव गॉट स्टेशन नंबर ए एट टाइम T1, एट टाइम T1, एट टाइम T1 योर ए हैज स्टार्टेड द ट्रांसमिशन, ठीक है। स्टेशन नंबर ए ने टाइम T1 के अंदर क्या किया, ट्रांसमिशन स्टार्ट किया, और आपके स्टेशन नंबर सी ने यहाँ पर ऊपर नीचे दिख रहा है, उसके ऊपर ध्यान मत दो, यू नो वी हैव दिस टाइम T1 एंड वी हैव दिस टाइम T2, ओके। अब जब जब आपका टाइम T1 पे इसने सेंड किया, तो अब ये किसी को सेंड करना चाह रहा है, जिसको भी ये डी को सेंड करना चाह रहा है शायद, ठीक है। तो ये टाइम T1 पे आपका ये निकला, एक सेकेंड ना, करते हो घूम रहे। सॉरी, चलो वापस आते हैं हम लोग। ओके, सो हम लोग ने स्टार्ट किया यहाँ पर, मैं इस पे आ जाता हूँ। ओके, सो एट टाइम T1 योर स्टेशन ए स्टार्टेड द ट्रांसमिशन, ओके, यू कैन सी द फर्स्ट बिट ऑफ ए यहाँ पे आ रहा है आपका, और उसके बाद में एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, ओके, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम ये क्या हो रहा है, इसने आपके सी स्टेशन ने क्या हुआ, डेटा ट्रांसमिट किया, ठीक है। तो एट टाइम T2 इसने ट्रांसमिट किया, अब ये हो रहा है किसी को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी को सेंड करना चाह रहा है, तो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम यहाँ पर इनका कोलिजन हुआ। अभी ये डेटा कोलिजन हुआ लेकिन पता नहीं चला किसको, देखो कैन सी कोलिजन अकर्स, कोलिजन हो गया अकर, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। जब ये यहाँ पर आएगा तब जाकर पता चलेगा, जब ए का डेटा, ए के जो फ्रेम्स है, सीज कोलिजन डिटेक्शन एंड अबॉर्शन, तो सी को यहाँ पे पता चलेगा, सीज कोलिजन डिटेक्शन एंड अबॉर्शन यहाँ पर होगा, और क्या करेगा सी, क्या करेगा, अपने अपने फ्रेम्स को अबॉर्ट कर लेगा, अपने प्रोसीजर को अबॉर्ट करेगा एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। और इसका जो आपका हो रहा है, और जब ये सी के फ्रेम्स, मतलब एक दूसरे के जब फ्रेम्स जब पहुंचेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तब जाकर पता चलेगा बेसिकली। तो ये सी के फ्रेम्स यहाँ से आए और यहाँ से यहाँ पे कोलिजन हो गया। अब उसके बाद में जो आपके बच्चे कुछ फ्रेम है या बच्चा कुछ जो डेटा है वो आपका यहाँ पर पहुंचेगा एट टाइम T4। तो एस कोलिजन डिटेक्शन एंड अबॉर्शन, तो यहाँ पर क्या करेगा, ए विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये वाला मैंने तो सेंड किया हूँ, लेकिन मेरे पास सी की भी फ्रेम्स आ रहे हैं, मतलब मुझसे होके जा रहे हैं। तो यहाँ पर एस कोलिजन डिटेक्शन एंड अबॉर्शन विल कम टू नो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। तो एट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोलिजन हो चुका है, बट ये पता कब चल रहा है हम लोग को, जब ये इनके रिस्पेक्टिव स्टेशन के पास में पहुंच रहे हैं, मतलब अपोजिट रिस्पेक्टिव स्टेशन के पास में पहुंच रहे हैं, तब जाकर पता चल रहा है। तो बस ये कोलिजन डिटेक्शन के अंदर बस इतना ही पता चलता है कि कोलिजन हुआ है कहीं, तो कोलिजन यहाँ पर हुआ और हम लोग को पता चल रहा है उनके रिस्पेक्टिव स्टेशन पर। तो अब ये इतना खाली ट्रांसमिट कर पाया यहाँ पर, इसका जो ट्रांसमिशन टाइम है वो ये बनेगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो स्टेशन ए ने यहाँ से स्टार्ट किया ट्रांसमिशन, ठीक है, भी स्टार्ट किया यहाँ से, और उसका पता कब चला कि भाई यहाँ पर कोलिजन हुआ है,
कोलिजन हुआ है, पता कब चला इसको, एट टाइम T4 चला, तो ये इतना टाइम क्या हुआ, उसने अपना ट्रांसमिट किया। सी ने कब स्टार्ट किया ट्रांसमिशन, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, यहाँ पर स्टार्ट किया, और पता कब चला, यहाँ पे पता चला कि भाई कोलिशन हुआ है, तो इसका जो ट्रांसमिशन टाइम है वो जी है। तो सिंपल है, डायग्राम खाली आपको इतना खाली डेमोन्स्ट्रेट करना है, और इस पर्टिकुलर इसके इसके थोड़ा अभी जो मैंने डिस्कस अभी जो मैंने पूरा डिस्कस किया आप लोग से, वो सब पूरा इस फ्रेम के अंदर है, पूरे इस पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है। सी एट दिस टाइम T1 स्टेशन है एज एक्सिक्यूटेड इट्स परसिस्टेंट प्रोसीजर एंड इट स्टार्ट सेंडिंग। अच्छा, जब उनको सेंड भी करना रहेगा तो उसके लिए परसिस्टेंट प्रोसीजर कोई ना कोई लोग यूज़ करेंगे, जैसे कि वन परसिस्टेंट है, नॉन परसिस्टेंट है, यूज़ करके पहले मीडियम को सेंस करेंगे, ठीक है। एंड इट स्टार्ट सेंडिंग द बिट्स ऑफ इट्स फ्रेम at time T2 station C has not yet sensed the first bit sent by the A। ये इसमें तो अपना सेंड कर दिया है, लेकिन ये भाई साहब ने अभी तक सेंस नहीं की। ये भाई साहब ने मतलब कि स्टेशन सी ने जब सेंस नहीं किए, इनका सेंस लेट किए इन्होंने, और इनका फिर बाद में जब जैसे ही सेंड किए तो यहाँ पर कोलिजन हुआ। तो बस ये आपका CSA में CD है। एक बार आप लोग को मैं आप लोग का सिलेबस एक बार दिखा दूं। कैरियर्स इज मल्टीपल एक्सेस, ये आपका रहा अलोहा, ये रहा आपका अलोहा, ये रहा आपका कैरियर्स इज मल्टीपल एक्सेस CSA में, और ये CSA में CD, ठीक है, जो कि कोलिजन डिटेक्शन है। उसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो इसके अलावा भी हमारे पास में और एक प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन अवॉइडेंस, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ। तो कैरियर्स इज मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, it was invented for the wireless network, and आगे है, and we have some strategies for this collision avoidance। collision को avoid ही करना है, मतलब पहले avoid कर लेना है, तो उसके लिए हमारे पास में एक इंटरफ्रेम स्पेस, दी कंटेंशन विंडो एंड एक्नॉलेजमेंट, ये 3 स्ट्रैटेजी है फ्रॉम विच वी कैन अवॉइड दी कोलिशन। तो बस ये इंटरफ्रेम स्पेस के अंदर कुछ ऐसा होता है, भाई टेक्निक होती है, और एक्नॉलेजमेंट है, और एक कंटेंशन विंडो यहीं पर, मतलब 2 कॉन्सेप्ट साथ में, मेरा उनको पढ़ना ही नहीं है तो फिर क्या है। उसके बाद में आपका ये कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल है, जैसे हम लोगों ने रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल पढ़े हैं, मैं दिखा दूँ आपको वापस एक बार। ये जो हम लोगों ने पढ़े हैं ये आपके रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है। उसके बाद में है कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, ओके। तो इन दिस कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, in controlled access protocol we have a reservation, we have polling and we have token passing, ठीक है। तो ये 3 मेथड है हमारे पास में, तीन प्रोटोकॉल है, 3 मेथड है, 3 स्ट्रेटजी है, ठीक है, जो कि स्टिल हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको एक बार जस्ट गो थ्रू करवा रहा हूँ ताकि आपको भी कम से कम पता रहे। एक है रिजर्वेशन, ये बहुत सिंपल मेथड है। पोलिंग के अंदर 2 मेथड यूज होते हैं, पोल और सेलेक्ट मेथड। उसके बाद में टोकन पासिंग है, टोकन पासिंग के अंदर इस तरह से एक टोकन होता है जो कि पास किया जाता है, फॉर एग्जांपल टोकन जिसके पास में, उसी को एंट्री और उसी को अलाउ करेंगे ट्रांसमिशन करने के लिए, जैसे हमारा हमारा रिंग टोपोलॉजी में होता है ना, वैसे ही कुछ सिस्टम यहाँ पर है। फिर आपके चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल FDMA, TDMA, CDMA, ये इसका मैंने स्मॉल में रखा हूँ। ये सारी चीज़ें आपके स्लाइड में है, मतलब ये फाइल में ऑलरेडी है, मैं फाइल शेयर करूंगा आप लोग को, तो फिर आप लोग इसमें से गो थ्रू कर सकते हैं। हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर सिलेबस में नहीं है तो पढ़ने की कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो विद दिस विल स्टॉप ओवर हियर, ओके। एंड द सिलेबस